اس مرتبہ کے سیلاب کا معاشی تخمینہ 10 ارب ڈالر ہے، یعنی آئی ایم ایف سے ہمیں جتنی حالیہ مدد ملی اس سے بھی 2 ارب ڈالر زیادہ۔ صوبائی اعداد و شمار خوفناک ہیں۔ پنجاب میں ابھی تک ہونے والے نقصانات یہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حالات کا اندازہ آپ ان اعداد و شمار سے لگا سکتے ہیں۔ بلوچستان، جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی، اس آفت کا کاغذوں پر صرف ایک عکس ہی دکھا سکتا ہے۔ اور سندھ میں تو بربادی ابھی بھی جاری ہے۔ جو گھر ٹوٹے وہ علیحدہ، جو جمع پونجی تباہ ہوئی وہ اس سے ہٹ کے۔ بیماریوں کا بوجھ لوگوں کو زمین میں دھنسا رہا ہے۔ بھوک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ فصلوں کی تباہی سے ایک زرعی ملک آنے والے سالوں میں بھی سنبھل نہیں پائے گا۔ یہ معاملہ 10 ارب ڈالر کا نہیں لگتا، اس سے کہیں زیادہ کی کہانی ہے۔ تباہی ہر جگہ بہت ہے، مگر پاکستان کے بعض حصوں میں اس کی گہرائی اور وسعت آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ پنجاب کے شمال میں یہ مناظر آپ نے کئی مرتبہ دیکھے ہوں گے۔ بلوچستان کی تباہی کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یہ تباہی جاری ہے۔ یہ ہر گاؤں کا قصہ ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ سمندر کا پانی ہو یا دریا کا پانی ہو یا سیلاب کا پانی ہو، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ آپ کو اس سیلاب کے نسبتاً دھیمے ریلے سے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ریلا یہاں سے نکلتا ہے اور اس کے بعد 750 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ سیلاب نے ہمیں وہ یکجہتی دی ہے زمینی طور پر اور پانی کے حوالے سے جو سیاسی طور پر ہم میں نہیں ہے۔ سیلاب کا ریلا یہاں سے نکلتا ہے اور سندھ کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دلدر سانجے ہیں، اگر سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ یہ ریلا یہاں سے نکلتے ہوئے اب سندھ کی طرف رواں دواں ہے، اور سندھ کے اندر حالات بہت ہی خراب ہیں۔ اگر پاکستان کے کسی حصے میں تباہی ہوئی ہے وہ بلوچستان اور سندھ ہے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سندھ کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے۔ شہداد کوٹ میں داخل ہوتے ہی بچے اور نوجوان سیلاب کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھڑے کھڑے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کو ابھی تک کوئی مدد نہیں ملی۔ بزرگ اور مرد اپنی اپنی بپتا بیان کرنا شروع ہو گئے۔ ان لوگوں نے ان علاقوں میں زندگیاں گزار دیں، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔
بچے چیخ رہے ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، کوئی خیمہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بچے چیخ چیخ کے چلا چلا کے زمین پر ہی لیٹ جاتے ہیں۔ ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں، ہمارے پاس اس وقت تک نمک تک نہیں، یہاں دال بھی نہیں کہ بچوں کو کھلائے، کچھ بھی نہیں۔ بچے بھوکے بیٹھے ہیں۔ زمیندار افسران ہمارے اوپر احسان کرے، ہماری مدد کرے۔ اس سال کے سیلاب تو غیر معمولی آفت ہیں۔ 60 سال میں ایسے سیلاب نہ دیکھے نہ سنے۔ 2010 کے سیلاب بھول گئے، مگر یہاں کے رہائشیوں کی حالت پہلے سے ہی کافی پتلی ہے۔ خواتین کو اپنا خیال کم اور بچوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی زیادہ فکر ہے۔ نحیف و نزار اور حالات کی ماری ہوئی خالی برتن لے کر مدد کی منتظر ہیں۔ مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ سیلاب سے پہلے ان کے دانے پورے تھے۔ سیلاب نے ان کو غربت اور بھوک کی نئی چکی میں دھکیل دیا ہے۔ ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا، 3-4 دن گزر گئے ہیں، نہ ہی کھانا مل رہا ہے اور نہ ہی پانی۔ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، سارے مویشی مر گئے، جو کچھ گھر میں کھانے کے لیے تھا وہ بھی گیا۔ مہربانی کر کے ہمیں کھانا دے کر جائیں۔ ہر کوئی لیڈران کا نام لے کر مدد کا طلبگار ہے۔ ہر کوئی وفاق اور صوبائی حکومت سے فوری مدد کا طلبگار ہے۔ نام لے کر لیڈران کو پکار رہے ہیں۔ اساں جو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اساں جو وسوارے بلاول زرداری کے ہماری وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے سیلاب زدگان کی مدد کرے۔ خدا را مدد کر۔ شہداد کوٹ کی اس تحصیل کی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سیلابی پانی اور دریائے سندھ میں فرق روا رکھنا مشکل ہے۔ ایسی جگہوں پر وقتی ریلیف کے لیے انتظام کرنا ناممکن نظر آتا ہے، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا۔ اب ہر کوئی سڑکوں اور پگڈنڈیوں کے کنارے بیٹھنے پر مجبور ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان جگہوں پر سیلاب سے پہلے بھی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہتی تھیں۔ آپ اگر کبھی یہاں پر آئیں تو یہاں پر آپ کو ننگ دھڑنگ بچے اور خوراک کی کمی کا شکار خواتین ہر گھر میں نظر آئیں گی، مگر اب تو حالات اور بھی بگڑ گئے ہیں۔ گھر گر گئے ہیں، اوپر آسمان ہے، نیچے مٹی اور ارد گرد گندا پانی۔ پیپلز پارٹی کا سیاسی گڑھ اور دہائیوں سے پاکستان کی سیاست کا محور لاڑکانہ بھی تباہی کے مناظر پیش کرتا ہے۔ یہاں پر گوٹھوں میں پانی ایسے آیا ہے کہ جیسے دریا کے جزیرے ہوں۔ یہاں پر مال مویشی اور زندگی کو چلانے والی پگڈنڈیوں پر اب کشتیاں چلتی ہیں۔
इनका किराया भी देना पड़ता है। जो घर बच गए हैं वहां के रिहायशी गारे और मट्टी के ढेरों में बैठे हैं। जो नीम तामीर शुदा 4 दीवारें थीं वो तहस नहस हो गईं। वक्ती तौर पर आबादी को सहारा देने के इंतजामात नाकाफ़ी हैं। हर जगह अपनी मदद आप के तहत बचे खुचे सामान को ठिकाने लगाने की कोशिशें नज़र आती हैं। बच्चे और बुज़ुर्ग बेबसी की तस्वीर का खौफनाक नमूना है। जगह जगह लोग गिरते पड़ते पानी में से चीज़ें निकालते खुद को वक्ती कामयाबी से दिलासे दे रहे हैं। जिंदा तो जिंदा दरगोर हुए, मर जाने वालों का चैन भी खो गया। मगर रेला है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताहद्द निगाह पानी और बर्बादी आपका मुंह चिढ़ाती है। यहाँ के रिहायशी दूसरे सिंध के अजला की तरह थक चुके हैं। ख़वातीन की हालत सबसे ज़्यादा बुरी है। न बाथरूम की सहूलत, न किसी किस्म की ग़ज़ा मौजूद। रोए नहीं तो क्या करे। असांखे वध कंदा है त असांखे रुगो इहा टुकड़ी असांखे करे ॾियो त रुगो असां पंहिंजा ॿचिड़ा वठी वेहूं मासूमड़ा वीचारा बि जेके कीअं था कनि था ॾिसो पाण था। सड़कों पर चले जाएं तो लोगों के मसाइल वैसे ही हैं जैसे गोठों में। हींअर बि असां ॿेड़ी में आहियूं। जेको हाल आहे पंहिंजे तरफ़ां असां करे रहिया आहियूं, पर इंतज़ामिया तरफ़ां असांखे 0/0। जितनी महंगाई है और जितना गरीब आवाम का नुकसान हुआ है, घर से बेघर हो चुके हैं। अभी इससे जो है पूरे 33 ज़िले में कुछ नहीं बचा है, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है। ऊपर से इतनी महंगाई है, आम लोग जो है बहुत इस वक्त मुसीबत में हैं। हम आवाम से अपील करते हैं कि गरीब आवाम को जो सैलाब बहुत मुतासर हुए हैं, इतने मुतासर हुए हैं कि उनके घर मकान भी नहीं रहे, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मेहरबानी करें इस गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ दें, महंगाई कम करें और उसकी परगो लें, तो ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो और हम अपनी फिर से वो नई ज़िंदगी अपने शुरू कर सकें। लड़काना के गढ़ का जो गढ़ है उसकी हालत आपको दिखाते हैं और फिर उससे आगे रत्तो डेरों से गढ़ी खुदाबख्श तक, जहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो अपने शहीद बच्चों और आबाओ अजदाद के साथ अबदी नींद सो रहे हैं। पक्की इमारतों में लोगों को लाकर गल्ला वगैरह दे देना ज़ाहिरन एक कामयाबी लगती है, मगर जो घर से उजड़ा हो वो इस हालत में खुश कैसे रह सकता है। जिनको छत नहीं मिली वो अहातों में डेरा जमाए हुए हैं। बेघरी की एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। नौडेरों से गढ़ी खुदाबख्श तक जाते हुए अतराफ में आपको सैलाब के निशानात नज़र आएंगे। पानी हर जगह से उबला है।
بعض لوگوں کے لیے اس میں سے بہتے ہوئے خزانوں کی تلاش فی الحال ایک واحد مشغلہ ہے۔ چونکہ سبزہ پانی میں ڈوب گیا ہے، قیمتی ڈھور ڈنگر بچانا اس وقت ایک عذاب سے کم نہیں۔ ٹھیکوں پر بنی ہوئی سڑکیں ویسے ہی بدعنوانی کی مثالیں ہیں۔ پانی نے تو یہ سارے پول کھول دیے۔ بارش کی آخری لہریں ابھی تک جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیاں اب بے معنی ہو گئی ہیں۔ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ گڑھی خدا بخش تک جانے والی یہ لنک روڈ دونوں اطراف سے پانی میں گھری ہوئی ہے۔ خیرپور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اور گڑھ۔ کاروبار زندگی کے نقصان کا تخمینہ فی الحال نہیں لگایا جا سکتا۔ ڈوبی ہوئی فصلیں، تباہال غلے کے گودام، کھاد، بیج اور نہری نظام سب درہم برہم ہے۔ جو زرعی مال تیار ہو گیا تھا اب مٹی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جائیں تو جائیں کہاں؟ اگر یہ مال بچ بھی جاتا تو منڈی تک کیسے پہنچتا؟ سکھر کراچی نواب شاہ والی یہ روڈ مواصلات اور ترسیل کے درہم برہم نظام کا ایک استعارہ ہے۔ تاریخ ساز شہر موہنجوداڑو جو آثار قدیمہ کا خزانہ سمجھا جاتا ہے، اپنے گرد و نواح سیلابی عذاب کی کئی مثالیں دیکھنے والوں کے لیے واضح کیے ہوئے ہیں۔ اس گاؤں کی حالت دیکھیں۔ مقامی صحافیوں کو کہنا ہے کہ اس علاقے میں 500 گھر نیست و نابود ہو گئے۔ وقتی نقل مکانی نے اس ہستے بستے گاؤں کو اجڑی بستی میں تبدیل کر دیا۔ مگر ہر کوئی اپنی زمین نہیں چھوڑتا، لہٰذا اگر مدد کو پہنچنا ہے تو ان لوگوں تک پہنچنا ہوگا۔ لوگ مدد کے قریب نہیں جائیں گے، بالخصوص اگر ان کو گاؤں اور گوٹھ کو چھوڑ کر جانا پڑے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو اس جیسے گاؤں پہلے سے ہی بدترین غربت کا شکار تھے، مگر بارشوں نے غربت کی ایک نئی لکیر کھینچ دی ہے۔ اس لکیر کے نیچے رہنا ناممکن ہے۔ مقامی حکومتیں اگر اپنا کام درست کرتیں تو بربادی کی شدت اور پھیلاؤ کم ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ حالیہ برساتوں نے پوری سندھ کی طرح ہمارے گاؤں کو بھی ڈیمیج کیا ہے۔ ایک تو 90% گھر جو ہیں وہ گر کے تباہ ہو گئے ہیں، باقی جو 10% بچے ہوئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ گرنے شروع ہو گئے ہیں، اور
निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है। जो भी पानी आया है वो एक कब्रिस्तान और बाकी कुछ घर हैं, घर तो पूरे डैमेज हो गए हैं, मगर ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की हालत आप देख रहे हैं। और इस कब्रिस्तान से थोड़ा सा आगे 6-7 फुट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। तो इस पानी के निकाल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया। हम अपनी मदद आपके तहत जितना पानी निकाल सके हैं वो निकाला है और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को निकालें, मगर खुदारा आवाम का साथ दें। और इस मुश्किल वक्त में जो है ना, यहाँ पे बीमारियों ने मुंह निकाला हुआ है। अभी गैस्ट्रो भी हो गई है, मलेरिया भी हो गई है, ख़ारिश की बीमारियाँ भी हो गई हैं, चमड़ी की भी हो गई हैं, इंसानों में भी और जानवरों में भी। हुकूमत की तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, ना कोई सेहत का बंदोबस्त है, ना कोई खुराक का बंदोबस्त है। यहाँ पे खुराक की बहुत ज़्यादा कमी है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बड़े लोग भूखे मर रहे हैं, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, और उसके बाद लेकिन तबाही के एतबार से शायद सबसे पहले बलूचिस्तान। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर इसका स्केल क्या है। मैं बहुत अरसे से कुदरती आफात को कवर कर रहा हूँ, ज़लज़ला हो या 2010 के फ्लड्स हों, ये मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ। जो इस वक्त मैंने तबाही सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में देखी है, वैसी तबाही आपको पिछले फ्लड्स में नज़र नहीं आती, और इसका अंदाज़ा आपको आने वाले दिनों में होगा। शहरों में जो लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं, वो अभी से सब्ज़ियों की कीमतों की सूरत में और अशियाए खुर्द नोश की कमी की सूरत में कुछ ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या। मैंने आपको तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ से फसलों के ज़रिए हमारी खुर्द नोश का बंदोबस्त किया जाता है, उसका बहुत हिस्सा ज़ेर आब आ गया और खड़ी फसलें तबाह हो गई। मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ पर लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, और मामला सैलाब का सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही नहीं है। जो ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं उनको रिस्टोर करते करते दहाइयाँ लग जाती हैं। अब यहाँ पर हमने करना क्या है? बुनियादी बात सबसे पहले तो ये है कि हमें सांझी इमदादी कार्रवाइयाँ करनी हैं, जिससे मुराद ये है कि अगर आप अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपने तय काम करते रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ जो आप बचा सकते हैं, हाथ मिलाकर आप बचा नहीं पाएंगे। तो सांझी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना होगा। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो कहने को बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है। कोविड से टैकल करने के लिए हमने एक बाकायदा इदारा बनाया, उसका कमांड सेंटर इस्टेब्लिश किया। उन तमाम इदारों के अंदर आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं जो पॉलिसी साज इदारे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक ऐसी सोच डेवलप नहीं हुई। टेलीफोन पर आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी अपनी प्रोजेक्शन के लिए या अपनी अपनी इमदादी कार्रवाइयों को अपने अंदाज से चलाने के लिए अलहदा काम कर रहे हैं। तो कौमी यकजहती और पॉलिसी की यकसुई जो पॉलिसी साजी के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं इन फोरम्स के ज़रिए, वो हमें मौजूद नज़र नहीं आती। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर पैसों की कमी नहीं है, और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए इमदादी कार्रवाइयों के लिए चंदे की बात नहीं करेंगे। वो आपका और खुदावंद ताला का मामला है कि आपके पास खुदावंद ताला ने इस्तिताअत कितनी दी है और आपने किस अकाउंट के अंदर कितने पैसे डालने हैं। गुजारिश सिर्फ ये है कि अगर आपके पास इमदादी कार्रवाइयों का हाथ बटाने के लिए खुदावंद ताला की तरफ से इस्तिताअत आई हुई है, तो उस इस्तिताअत को आज इस्तेमाल करने का वक्त है। मैं असल में बात कर रहा हूँ उन पैसों की जो पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर डैम फंड्स की मद में बहुत से पैसे इकट्ठे किए गए। इस वक्त पाकिस्तान को उन डैम फंड्स की ज़रूरत है। हमें साकिब निसार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो तो साकिब निसार की ज़रूरत पहले भी शायद नहीं थी, लेकिन साकिब निसार ने डैम फंड के नाम पर जो कुछ किया, लोगों का पैसा इकट्ठा किया, और वो पैसा अकाउंट में पड़ा डिवैल्यू हो रहा है। जब ये पैसा इकट्ठा किया गया तब डॉलर और रुपये की पैरिटी देखिए, और अब डॉलर रुपये की पैरिटी देखिए, तो जो पैसा दिया वैसा ही आधी कीमत पे चला गया। अगर आधी कीमत पे नहीं चला गया तो 30% तो उसका ज़ाया हो गया। पेशतर इसके कि वो मज़ीद अपनी कदर खो बैठे, उस फ़ंड को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो पैसे बरतानवी करप्शन से डील करने वाली एजेंसी ने
मलिक रियाज के केस में पाकिस्तान में भिजवाए थे और जिसको इमरान खान और शहजाद अकबर ने मिली भगत के साथ या आपस में मामलात को तय करके काबीना के सामने एक लिफाफा लहरा कर उनको एडजस्ट करवा दिया, उन पैसों को भी रिट्रीव करने का मामला है। वो तमाम के तमाम पैसे फेडरल हुकूमत सिंध को मुकम्मल तौर पर दे सकती है या फेडरल हुकूमत क्लेम करके सिंध हुकूमत को उसका एक बड़ा हिस्सा दे सकती है। लेकिन अगर तमाम के तमाम पैसे सिंध हुकूमत को 50 बिलियन के करीब आप दे देते हैं तो पाकिस्तान के तबाहशुदा सूबों के उन हिस्सों के अंदर आप दोबारा से ज़रखेज़ी रिस्टोर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत अगर ये पैसे उनको मिलते हैं जो कि उनको मिलने चाहिए, थोड़ी सी फ़राख दिली का मुजाहरा करे तो साउथ पंजाब के अंदर भी ये पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं और कुछ हिस्से बलूचिस्तान के भी इन्वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये दरिया का पानी आपको बता रहा है, ये सैलाबी रेला आपको बता रहा है कि हमारी मुसीबत सांझी है। जो रेला कोहिस्तान से चलता है वो ठट्ठा के अंदर से होता हुआ अंदरून सिंध से गुज़रता हुआ दरिया के सूरत में समुंदर में गिरता है, और वो आपको बता रहा है कि अगर आपने यकजहती का मुजाहरा नहीं किया और एक दूसरे के मसाइल को हल नहीं किया तो सब पिटेंगे। तो अगर सिंध को ये पैसे मिलते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो सिंध के पैसे साउथ पंजाब के अंदर भी कुछ खर्च होंगे और कुछ बलूचिस्तान के अंदर भी। और सबसे आखिर में सियासत को मौखर करने की ज़रूरत है, और ये कोई सियासी प्रोपेगेंडा है नहीं। जब पाकिस्तान के लोग इस आफत का शिकार हों कि जिसने पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अदाद शुमार आपको ये कहानी बताते हैं, यानी सिंध के आप समझें 90% जो अजला हैं वो किसी न किसी तौर से, और इसमें से आधे से ज़्यादा बुरे तरीके से इस फ्लड से मुतासर हुए हैं। KP के अंदर अगर आप आएँ तो 34 में से 33 अजला जो हैं वो किसी न किसी तरीके से मुतासर हुए हैं, और मालाकंड डिवीज़न से लेकर और ये तमाम के तमाम जो आपको अजला नज़र आते हैं, जिसके अंदर पेशावर है, जिसके अंदर नौशेरा है, जिसके अंदर चारसद्दा है, जिनको हम वैली के अजला कहते हैं, ये मुतासर हुए हैं। और साउथ KP भी बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। फिर पंजाब का साउथ तो मुतासर है ही, और बलूचिस्तान की तो आप समझें कि मुकम्मल तौर पर वहाँ पर 3 ही बंद रह गए हैं, बाकी तमाम के तमाम बंद जो हैं बुरे तरीके से या टूट गए हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, और वहाँ की बदहाली का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जब ये सूरत हाल मौजूद हो तो सियासत को मौखर कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बहुत फ़राख दिल हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लोगों की जो मेमोरी है उसके अंदर ये बात ठहर जानी चाहिए कि मुसीबत और आफत के वक्त, और ये मुसीबत और आफत सिर्फ मुकामी नहीं है, ये कौमी मुसीबत और आफत है। कौन लोग ऐसे थे जो सियासत करने पर इसरार कर रहे थे, और कौन लोग थे जो मुल्क के लिए हकीकी काम कर रहे थे। और मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ये इम्तिहान सियासी क़यादत का भी है, ये इम्तिहान मुक़्तदर हलकों का भी है, ये इम्तिहान मुख़य्यर लोगों का भी है, और ये इम्तिहान अवाम का भी है कि उनको क्या याद रहता है या नहीं रहता कि जब आफत आती है तो कौन साथ खड़ा होता है और कौन सियासत कर रहा होता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।